A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with another important topic of chapter Principle of Inheritance and Variation, and the topic is multiple allelism. Now, नाम से indicate हो रहा है कि what is multiple allelism? So most asked question in board exams, multiple allelism and pleiotropic gene and polygenic inheritance. These are the most important topics of this chapter. Now start करते हैं with the multiple allelism. What is multiple allelism? That is नाम से indicate हो रहा है. Here is a single gene is controlled by three, or single character is controlled by a gene, single gene, and single gene represented by or have more than two alleles. So these are known as the multiple allelism, where more than two alleles are present in a single gene. So here multiple allelism, where more than two allele present in a single gene. तो एक जीन में दो से ज्यादा एलील हो तो, और दो से ज्यादा एलील कंट्रोल करें सिंगल जीन की कैरेक्टरिस्टिक को, और एक जीन कंट्रोल करे सिंगल कैरेक्टर. हियर इज सो दैट यहाँ पे क्या होगा, वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय only one gene in multiple allelism, but one gene is controlled by more than two alleles. So here is three allele. तो थ्री एलील्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. सो इस वजह से इसे मल्टीपल एलीलिज्म बोला जा रहा है, बिकॉज वन जीन और थ्री एलील्स प्रेजेंट इन ए वन जीन. एक जीन में ये थ्री एलील कंट्रोल कर रहे हैं एक सिंगल जीन को, और सिंगल जीन कंट्रोल कर रहे हैं वन ट्रेट को. एग्जाम्पल इज ब्लड ग्रुप. हियर इज ब्लड ग्रुप. सो ब्लड ग्रुप कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? In example is blood group, in which blood group is a single trait. So here is blood group is a single trait. Trait is blood group, and the whole blood group is controlled by a single gene, that is I gene. I stand for the isohemagglutinin. तो isohemagglutinin, that means isohemagglutinin, I stand for the isohemagglutinin or gene I. Now with these particular single gene is controlled by I gene, have three types of three allele. It is controlled by three allele, that is IA, IB or small I, or it is also represented by the IO. So IA, IB and small I is these three allele are responsible for the control of a single trait, that is blood group. So एक चार्ट के थ्रू हम ये देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्लड ग्रुप के लिए. बिकॉज ओनली, क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉयड कंडीशन है, तो एलील देयर इज अ सिंगल जीन और एलील सिर्फ दो ही होंगे इन केस, बट कंट्रोल कर रहे हैं. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होंगे? थ्री जीन. तो लेकिन तीनों ही एलील एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ डिप्लॉयड कंडीशन में इनमें से सिर्फ दो ही एलील प्रेजेंट होंगे, आइदर IA, IB, IB और स्मॉल आई, और मे भी हो सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन में दोनों ही IA हो. तो ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट. हियर इज in that case, if IA is present in any individual, in the case of IA, अगर IA है, because the human is diploid, so there is a two allele IA. If there is homozygous, the condition is homozygous, then it may be heterozygous. Human may be heterozygous,
heterozygous. Here is now it is also represented by IA small I in the homozygous for the blood heterozygous for the blood group A. ब्लड ग्रुप ए, तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे इन सभी केस में ब्लड ग्रुप ए ही होगा, वेदर वो होमोजाइगस हो, हेट्रोजाइगस हो, और यहाँ सिमिलरली यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस हो. इन सभी केस में क्या होगा, इफ देर इज यहाँ पे इफ इन द होमोजाइगस कंडीशन द आरबीसी, यहाँ पे क्या होगा, द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हैव ओनली ए टाइप ऑफ शुगर ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन in the case of this. Now if in heterozygous condition, if there is two type of allele are present in the diploid organism or in the diploid human, so here is IA and IB. In that case this is a heterozygous condition. In that case यहाँ पे क्या होगा, on the RBC membrane the sugar, there are two type of sugar present on the RBC, that is IA and IB type. Here is IA and here is IB type of sugar on the RBC membrane. If there is in that case if small I is present, तो इस केस में क्या होगा, बिकॉज स्मॉल आई के केस में देर वहाँ यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी एंटीजन या शुगर का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन बिकॉज क्योंकि आई ए है तो ए की कंडीशन में अगेन यहाँ पे शुगर आई ए टाइप के होंगे. Now that case, if both type of sugars are present on the RBC membrane, so the blood group is IAB type. If only one type of sugar is present, so the blood group is A type. In that case, both, this is also a heterozygous condition, but in case of small I there is यहाँ पे कोई भी शुगर का फॉर्मेशन नहीं होगा. इसकी वजह से आई के केस में, स्मॉल आई के केस में ये शुगर यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हुआ, बट आई कैपिटल आई ए है, तो इस केस में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए टाइप ऑफ शुगर. तो यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप ए टाइप होगा. नाउ चार्ट से रिप्रेजेंट, इसी को चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे ब्लड ग्रुप कैसे हम देखते हैं और कैसे इफ ऑफ पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में क्या होगा. बिकॉज ये ब्लड ग्रुप शोज मल्टीपल एलील्स में ऑल्सो शोज द को डोमिनेंस. तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द को डोमिनेंस. दैट मीन्स कि जब को डोमिनेंस क्या है, कोई भी एक पर्टिकुलर एक ट्रेट डोमिनेंस नहीं होगा या एक कैरेक्टर, या क्योंकि हम ब्लड ग्रुप एज ए ट्रेट ले रहे हैं, एक कैरेक्टर ले रहे हैं, ट्रेट ले रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, एक डोमिनेंट, हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे वही सिर्फ शो होते हैं, और रिसेसिव कैरेक्टर सप्रेस्ड हो जाएंगे, सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट कैरेक्टर. बट इन द को डोमिनेंस केस, बिकॉज द ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लड ग्रुप टाइप. तो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप को कैसे को डोमिनेंस में लिया जा सकता है, जैसे ब्लड ग्रुप, बिकॉज इन द लॉ ऑफ डोमिनेंस द ओनली सुपीरियर और डोमिनेंट कैरेक्टर शो होंगे इन द F1 जनरेशन, बट इन द केस ऑफ को डोमिनेंस द कैरेक्टर मेल, वेदर अगर उस ये किस पे डिपेंड करेगा, पेरेंट्स और दोनों ही पेरेंट मेल और फीमेल पे, अगर दोनों से एलील आ रहे हैं और उसके लिए ट्रेट्स हैं दोनों ही एलील पर, तब दोनों ही कैरेक्टर एक साथ दिखाई देंगे, पैचेस में भी दिखाई दें, और दोनों साथ अपने, वेदर वो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, प्रोटीन फॉर्मेशन, एंजाइम फॉर्मेशन या डिफरेंट ट्रेट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो दोनों ही कैरेक्टर दिखाई देंगे इन द को डोमिनेंस. तो यहाँ पे अगर चार्ट से हम देखते हैं मल्टीपल एलिलिज्म कैसे शो होता है और कैसे, मतलब कि 3 एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट डिप्लॉयड कंडीशन है तो एक साथ से 2 ही आ सकते हैं, 2 में कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा इन द ऑफस्प्रिंग. हियर इज parent 1, here is parent 2, parent second. in the offspring क्या होगा, ऑफस्प्रिंग में कैसे शो होंगे इन द ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप क्या होगा, इफ, क्योंकि जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो कोई सिंगल एलील ही आएंगे गैमेट में. तो इफ पेरेंट से यदि अगर स्पर्म के पास आई ए है एंड ओवम के पास आई ऑल्सो हैव आई ए, इस टाइम में ऑफस्प्रिंग के पास जब ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा
और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो IA दोनों रिप्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप इज A टाइप। इफ पेरेंट हैव sperm have IA and the parent the egg of is heterozygous condition, in the heterozygous condition यहाँ पे IA IB, सो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो दोनों ही एलील एक ब्लड ग्रुप क्या होगा AB टाइप का, दोनों ही एलील अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, यही कोडोमिनेंस है। तो मल्टीपल एलीलिज्म में जो ब्लड ग्रुप है ये ऑल्सो रिप्रेजेंट करते हैं कोडोमिनेंस को, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं और एक सिंगल ट्रेट मल्टीपल एलील से शो और रिप्रेजेंट किया जाएगा और प्रेजेंट होंगे इन द सिंगल जीन। सो जीन क्या है, आई है, आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइसोहीमोग्लूटिनिन और यहाँ के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है IA, IB एंड स्मॉल आई, 3 एलील रिस्पॉन्सिबल थे। तो यहाँ पे हियर इज अनदर एग्जांपल इज इफ पेरेंट हैज IA और फीमेल इज स्मॉल आई, सो द ब्लड ग्रुप इज IA स्मॉल आई। स्मॉल आई के केस में कोई शुगर का फॉर्मेशन नहीं होगा ऑन द RBC मेम्ब्रेन, बट IA इज प्रेजेंट, सो द ब्लड ग्रुप इज A टाइप, बिकॉज IA के प्रेजेंट में A टाइप के शुगर का फॉर्मेशन होगा। इफ IB एंड हियर इज ऑल्सो IB, इन दैट केस IB B टाइप के शुगर का फॉर्मेशन होगा एंड ओनली B टाइप, ब्लड ग्रुप B। नाउ सिमिलरली हियर इज IB IA again IB IA and the blood group type is AB because both type of sugar form on the RBC membrane. Now here is IB and small I के केस में कोई शुगर नहीं, similarly but IB can form sugar so that the blood group is B type. Now if parent have small I, in the small I condition यहाँ पे ऑस्प्रिंग स्मॉल आई एलील, बट क्योंकि शुगर का फॉर्मेशन नहीं होगा देन द ब्लड ग्रुप इज O टाइप। तो ये पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन की। नाउ नेक्स्ट इज, तो मल्टीपल एलीलिज्म कैसे शो हो रहा है, वन जीन इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील दैट इज IA IB एंड द थर्ड इज स्मॉल आई। सो ये हमेशा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 2 एलील प्रेजेंट होंगे, तो पॉसिबिलिटी जितनी बन सकती है उसके अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप टाइप कितने हुए A AB B एंड O टाइप, 4 ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो और ब्लड ग्रुप इज बेस्ट एग्जांपल फॉर द मल्टीपल एलीलिज्म। नाउ नेक्स्ट इज द पॉली ब्लड ग्रुप। नाउ O टाइप, तो यहाँ पे मल्टीपल एलीलिज्म बेस्ट एग्जांपल है फॉर द मल्टीपल ब्लड ग्रुप क्या है, बेस्ट एग्जांपल है फॉर द रिप्रेजेंटिंग द मल्टीपल एलीलिज्म। इन द मल्टीपल एलीलिज्म वन जीन इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील इन विच IA, one gene is IA and the one allele is IA, second allele is IB and third is small I। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाउ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, polygenic inheritance and the meaning of polygenic inheritance, that is poly or genic, that is one trait is controlled by more than 2 gene, 2 or more than 2 gene. So here is one trait which is controlled by एक trait के लिए 2 or more than 2 genes, सो वन ट्रेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होंगे 2 और मोर देन 2 जीन, मोर देन 2 जीन। तो सिंगल ट्रेट, इसका मतलब क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कि एक कैरेक्टर नॉर्मली जो होता है वो एक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन कैरेक्टर और वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन और फॉर वन जीन देयर इज 2 एलील्स, बट इन दैट केस इन द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर देन
टू जीन्स, मतलब कि दो से ज्यादा और दो या दो से ज्यादा जब जीन मिलके एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करें तो वहां पे हमें को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पे ना अगर हम मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखें और डाई हाइब्रिड क्रॉस देखें तो उन्होंने दो ट्रेड्स लिए थे, वायलेट और व्हाइट। कलर वायलेट और व्हाइट को जब क्रॉस कराया तो आइदर उन्हें डोमिनेंट और रिसेसिव और इंटरमीडिएट में भी, तो इंटरमीडिएट में भी डोमिनेंट ही उन्हें शो होंगे और रिकॉम्बिनेंट में भी उन्हें डोमिनेंट शो हुए थे। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को देखें तो वहां पे सिर्फ दो ट्रेट हमें, या एक सिंगल ट्रेट के हमें दो वेरिएंट नहीं दिखाई देते हैं। मतलब कि अगर हम स्किन टोन लेते हैं, स्किन टोन हमें या तो एकदम फेयर और एकदम डार्क हमें नहीं दिखाई देता है, हमें इंटरमीडिएट भी दिखाई देते हैं। इंटरमीडिएट लाइट स्किन टोन से डार्क स्किन टोन के कई वैरायटी हमें और कई पिगमेंटेशन के वेरिएंट हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे और अगर इवन हाइट भी हम लिए तो अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या तो हमें टॉल और ड्वार्फ में जब उन्होंने क्रॉस कराया तो या तो आइदर टॉल मिलेगा या तो ड्वार्फ कंडीशन मिलेगी। बट अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन में देखें तो हमें या टॉल और ड्वार्फ ही केस नहीं मिलते, हमें इंटरमीडिएट हाइट वाले भी ह्यूमंस में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे सीधे ये बताया गया कि कैसे अगर जीन रिस्पॉन्सिबल होते फॉर ह्यूमन, इफ सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट, सो ओनली दो ही एलील होंगे। फॉर एग्जाम्पल हियर इज आई ए और आई बी, नॉट आई। अगर ए और बी ले लिया जाए, अगर आई नहीं लिया जाए तो ए और बी अगर सिंगल जीन, और ये ह्यूमन की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइट के लिए, तो ए और बी एलील होंगे, आइदर ये होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस और अगेन रिसेसिव होमोजाइगस। डोमिनेंट की कंडीशन में हमें टॉल दिखाई देते हैं और फिर रिसेसिव की कंडीशन में हमें ड्वार्फ दिखाई देते हैं, ड्वार्फ। और ये रिसेसिव दैट मीन्स कि दोनों ही होमोजाइगस, ड्यूरिंग होमोजाइगस कंडीशन में। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हमें टॉल मिलेंगे, अगर ए एंड बी आ जाए तब भी जो डोमिनेंट होगा हमें उसके कैरेक्टर दिखाई देंगे टॉल। तो हमें एक 6 फीट हाइट के मिलते, फिर सडन 2 फीट और 3 फीट जो भी ड्वार्फ कंडीशन होती। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, यही दो हाइट हमें दिखाई देती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें ह्यूमन पॉपुलेशन में कई वेरिएंट मिलते हैं, हाइट भी उसके 1 इंच वेरी भी करता है, ऐसा हाइट हमें दिखाई देता है। तो कई सारे हाइट के एग्जाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन में और स्किन टोन के एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। जैसे अब यहाँ पे स्किन पिगमेंटेशन एग्जाम्पल है, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं स्किन पिगमेंटेशन के लिए तो देखते हैं स्किन एग्जाम्पल इज पिगमेंटेशन। स्किन पिगमेंटेशन में क्या होगा यहाँ पे कि हमें स्किन डार्क टोन और लाइट टोन हमें दोनों ही दिखाई देते हैं, बट उसके कई सारे वेरिएंट्स भी दिखाई देते हैं, सिर्फ डार्क और लाइट टोन ही एकदम सडन नहीं दिखाई देता है। तो स्किन पिगमेंट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 जीन, मोर देन 2 जीन से कंट्रोल किया जा रहा है, दैट इज ए बी एंड सी। जीन इज A, B and C, A, B and C। और इनके एलील्स क्या होंगे, कैपिटल एलील में भी कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, सिमिलरली कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। तो ये वेरिएबल अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, हियर इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, सो स्किन पिगमेंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन ए बी सी। अब ना जीन तो ए बी सी है, बट एलील कौन से होंगे, एलील यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में हो सकते हैं। तो हियर इज ए बी and here is C. If A gene is controlled by two capital A, so here is homozygous condition, capital A, small a, heterozygous condition, and small a, again homozygous condition. But this is
हियर इस केस में क्या होगा, कैपिटल ए इज रिस्पॉन्सिबल, इफ कैपिटल ए इज प्रेजेंट तो ये डोमिनेंट कंडीशन है, कैपिटल ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमिनेंट कंडीशन, कैपिटल ए इज फॉर डोमिनेंट कंडीशन एंड डोमिनेंट कलर कौन सा होगा, डार्क स्किन टोन, हियर इज डार्क स्किन टोन एंड स्मॉल ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसेसिव character, here is recessive character is light skin tone. So यहाँ पे if human with allele capital A, so the skin tone is dark. In heterozygous condition, if the allele is capital A small a, in that case again the skin tone is dark and small a homozygous condition, but the allele is recessive, so the skin tone become light, but it is controlled, the color of the skin is controlled by these all three genes, that means कि 6 allele जो कॉम्बिनेशन होंगे ये मिलके डिफरेंट कलर शो करेंगे, मतलब कि डिफरेंट पिगमेंटेशन शो करेंगे ऑन द स्किन, वेदर वो एकदम एक्सट्रीम डार्क से लाइट की तरफ मूव करे और एक्सट्रीम लाइट से और डार्क की तरफ मूव करे, तो एकदम फेयर स्किन टोन भी हमें मिल जाता है, थोड़ा उससे कम, और ये वेरिएंट हमें इसके अप्रोक्सीमेटली 64 वेरिएंट हमें मिलते हैं स्किन टोन के। तो ये वेरिएंट क्यों मिल पाते हैं स्किन टोन के, क्योंकि ये कंट्रोल किए जा रहे हैं 3 जीन से और 6 एलील से कंट्रोल किया जा रहा है पिगमेंटेशन। तो 6 एलील, अगर हम इनके वेरिएंट्स अगर देखा जाए, क्योंकि 2 एलील है 6 एलील कंट्रोल कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 64 हमें कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। अब 64 कॉम्बिनेशन हमें कैसे मिलेंगे, हियर इज इफ कैपिटल बी, तो अनदर वेरिएंट हमें यहाँ पे इस केस में सिमिलरली स्मॉल बी हेटेरोजाइगस, तो अनदर वेरिएंट हियर इज डार्क, अगेन शोज डार्क, देन डार्क, लाइट, हियर इज स्मॉल बी अगेन लाइट कंडीशन। तो इफ यहाँ पे फिर इन सच केस कैपिटल सी डार्क, कैपिटल सी स्मॉल सी डार्क, अगेन डार्क एंड स्मॉल सी light. So अगर if these all three genes में जितने भी एलील हैं सभी रिसेसिव हो गए, तो जो इंडिविजुअल जो ह्यूमन होगा, जो स्किन टोन होगा उसका लाइट स्किन टोन होगा। अगर ह्यूमन में ये 3 जीन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं पिगमेंट को, 3 जीन अगर कंट्रोल कर रहे हैं पिगमेंटेशन को, अगर सभी डोमिनेंट हो गए, होमोजाइगस डोमिनेंट, सो दैट द जो स्किन टोन कलर है वो डार्क हो जाएगा, एकदम डार्क। नाउ इफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे। तो टोटल 64 वेरिएंट बनते हैं और 64 कॉम्बिनेशन स्किन टोन के बनते हैं और पिगमेंटेशन के, स्किन के पिगमेंटेशन के बनते हैं। अगर हम क्रॉस कराए तो यहाँ पे डिफरेंट 64 पिगमेंटेशन हमें दिखाई दे जाएंगे। वो रेशियो किस में होगा, रेशियो होगा 1:6:15 20:15 6:1। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सट्रीम डार्क कंडीशन, एक्सट्रीम डार्क पिगमेंटेशन होगा, डार्क पिगमेंटेशन। नाउ हियर इज लाइट पिगमेंटेशन, लाइट पिगमेंटेशन और फेयर, जो एकदम एक्सट्रीम फेयर पिगमेंट आता है वो। नाउ ये रेस्ट क्या है, 20 क्या है, ये इंटरमीडिएट आ जाएंगे आपके 6 to 20, 6 to 6, यहाँ पे इंटरमीडिएट स्किन टोन, इंटरमीडिएट स्किन टोन आप ये आ जाएंगे। इंटरमीडिएट स्किन टोन में जैसे कि जो वेरिएबल स्किन टोन हमें दिखाई देते हैं, कई सारे वेरिएंट हमें स्किन टोन के दिखाई देंगे, तो वो कॉम्बिनेशन यही 6, 15, 20, 15 एंड 6 होंगे। जो एक्सट्रीम डार्क हमें मिल रहा है वो किसकी वजह से सिर्फ 1 होगा, और एक्सट्रीम लाइट कंडीशन ऑफ एकदम फेयर जो स्किन टोन होगा वो अगेन 1, बाकी सब वेरिएंट हमें दिखाई देंगे। तो ये हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाउ नेक्स्ट इज टॉपिक प्लियोट्रॉपिक और प्लियोट्रॉपिक जीन।
प्लीiotropic और प्लीiotropic जीन, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड कंट्रोल मोर देन 2 ट्रेट्स, और सिंपली ये क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे मोर देन 2 और 3 ट्रेट्स को। तो यहाँ पे सिंगल जीन है, हियर इज सिंगल जीन contributes into multiple phenotypic trait. Traits, for example, PKU, it is phenyl ketonuria. Phenylketonuria, according to the phenylketonuria, there is a यहाँ पे क्या होगा, फेनिलएलानिन की मेटाबॉलिज्म, लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिलएलानिन, फेनाइलएलानिन, दैट इज कि फेनाइलएलानिन के मेटाबॉलिज्म नहीं होता है इस केस में। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर इसकी मेटाबॉलिज्म से एक तो फेनाइलएलानिन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो यूरिन में फेनिलएलानिन डिस्चार्ज होने लग जाएंगे। अनदर केस है कि जो फेनिलएलानिन को कन्वर्ट करते हैं, इसके यहाँ पे क्या होता है, सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से जो एक जीन, फॉर एग्जांपल एक जीन कंट्रोल करते हैं मल्टीपल phenotypic trait को, अगर पर्टिकुलर एक जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनी इंपॉर्टेंट एंजाइम, a single gene is responsible for the synthesis of a enzyme phenylalanine hydroxylase. फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये किसकी वजह से हो रहा है, एक सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द synthesis of this enzyme phenylalanine hydroxylase, and this enzyme participate in the conversion of phenylalanine to the tyrosine, and in that case PKU में क्या होगा, इस पर्टिकुलर डिजीज ये सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल है इनकी सिंथेसिस के लिए, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की सिंथेसिस के लिए। अगर ये म्यूटेट हो जाते हैं तो इस एंजाइम की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, अगर ये एंजाइम सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे तो मल्टीपल ट्रेट, जो हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज हो जाएगा, पर्टिकुलर मेंटली रिटार्डेड जो ह्यूमन है मेंटली रिटार्डेड हो जाएंगे, देन डोपामीन और मिलेनिन पिगमेंट्स की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो कई सारे जो डीपिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन में, और देन मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, डोपामीन सिक्रीट नहीं हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो कई सारे ट्रेट्स इन्फ्लुएंस इससे हो जाते हैं सिंगल जीन। दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, एक जीन कंट्रोल कर रहा है कई सारे ट्रेट को, मल्टीपल ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, और मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट को कंट्रोल किया जा रहा है बाय द सिंगल जीन। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एंजाइम सिंथेसाइज नहीं हुआ फेनाइलएलानिन में, फिर फेनाइलएलानिन, तो ये हियर इज हाइड्रोक्सिलेज, यहाँ पे टायरोसिन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, हियर इज अनदर अमाइनो एसिड विच इज द डेरिवेटिव ऑफ फेनिलएलानिन। टायरोसिन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। इन टायरोसिन से क्या हो रहा था, थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज किया जा रहा था। थायरोक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4, और T3 ही क्या है, थायरोक्सिन है, और दे आर सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। सो थायरोक्सिन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म पर्टिकुलर ह्यूमन को कॉज हो जाएगा। नाउ डोपामिन इज ऑल्सो
dopamine is also not synthesized by the in the absence of this hydroxylase enzyme, and amino acid also. Now melanin is responsible for the pigmentation of skin, so that यहाँ पे अगर मेलेनिन अगर सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है तो पिगमेंटेशन नहीं प्रॉपर हो पाएगी स्किन की, तो ऐसे इंडिविजुअल सनलाइट में नहीं निकल पाएंगे, तो ये कॉज हो जाएगा. एंड नाउ अनदर इज जो यहाँ पे फेनिल एलानिन का एक्यूमुलेशन होने लग जाए, तो एक्यूमुलेशन ऑफ फेनिल एलानिन. ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फेनिल एलानिन क्या होगा, मेंटली जो पर्सन है मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा. तो डिफरेंट यहाँ पे कई सारे जो कैरेक्टर है फिनोटिपिक कैरेक्टर ये रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं सिंगल जीन से, और दिस सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए सिंगल एंजाइम. सो एक जो मेटाबॉलिक साइकिल होती है और मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन वो स्टॉप हो जाएंगे अब इसके हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के एब्सेंस में. नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे.